Good morning, everyone. Today, taking our lesson further, we'll be starting with the next topic of water resources, that is disadvantages of multipurpose projects. In our previous video, we studied about multipurpose river projects and the various hydraulic structures that have been present in our country since ancient time. We also studied the advantages of multipurpose river projects, and today in our video we'll be discussing the disadvantages of these projects. The first point says regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds, and poor habitats for the river's aquatic life. That means when we channelize or when we regulate the flow of water from the rivers to these डैम्स, तो उससे क्या होता है कि जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है वो अफेक्ट होता है. देन ड्यू टू द रेगुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, जो सेडिमेंटेशन है वो हो रही है, एंड दिस दैट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सैंड दे आर गेटिंग कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द these reservoirs, और जिसके कारण जो इनके लोअर एरियाज़ हैं ऑफ दीज रेजर्वॉयर दे आर बिकमिंग रॉकियर. मतलब वहाँ पे रॉक्स की अक्यूमुलेशन हो रही है या क्ले सैंड, ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग कलेक्टेड, और इससे जो उस एक्वेटिक लाइफ है जो उन रेजर्वॉयर्स में रह रही है उनकी लाइफ में उनके हैबिटेट्स में इफ़ेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ दीज particles at the bottom of the reservoir. Then the second point says dams also fragment rivers. That means dams and they are breaking the flow the rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate. जिसके कारण they are not even the aquatic life is not even able to migrate, especially for spawning. Spawning means when they give birth by laying the eggs. तो जो एक्वेटिक लाइफ है बेसिकली वो बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि रिवर्स में जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनके कारण जब हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उससे रिवर्स ब्रेक हो रहे हैं, और एंड दीज रिवर्स आर दी हैबिटेट्स ऑफ मैनी एक्वेटिक फौना. तो उससे वो एक्वेटिक फौना के भी मतलब डैमेज हो रही है. देन द थर्ड पॉइंट सेज the reservoirs that are created on the flood plains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. इसका मतलब है जब हम बड़े बड़े रेजर्वायर्स या डैम्स बनाते हैं तो काफ़ी लैंड जो होता है वो सबमर्ज हो जाता है पानी में, जिसके कारण जो नियर बाय कोई वेजिटेशन है या सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स. The fourth point says multipurpose projects and large dams have been the cause of many new social movements like Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan. इसमें क्या था, resistance of these projects has primarily been due to the large scale displacement of local communities. इसका मतलब है जब लार्ज डैम्स बनते हैं या रेजर्वॉयर्स बनते हैं तो उससे जो नियर बाय एरियाज़ हैं उनके लैंड सबमर्ज हो जाते हैं पानी में, तो जिनके कारण उनको शिफ्ट करना पड़ता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी हो रही है. दैट मीन्स द पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर, क्योंकि वहाँ जो लैंड है दैट हैज़ बीन सबमर्ज्ड इनटू द डैम्स. Then the fifth point says local people had often had to give up their land, livelihood and their meagre access and control over resources for the greater good of the nation. That means जो local communities हैं जो अपना land sacrifice कर रहे हैं, अपने habitat sacrifice कर रहे हैं, still they are not getting the benefit of these multipurpose projects. उन लोकल कम्युनिटीज़ को इन डैम्स की कंस्ट्रक्शन से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है. देन वी हैव सिक्स्थ पॉइंट. इट सेज इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स
This has great ecological consequences like salinization of the soil. That means जब डैम्स की कंस्ट्रक्शन होने के कारण जो फार्मर्स हैं वो भी अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं. नाउ दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स दोज क्रॉप्स जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. दोज आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और स्पेशली वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं बिकॉज उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो फिल हो रही है डैम्स के कारण. सो दे आर यूजिंग मोर ऑफ वाटर एंड दे आर ग्रोइंग दोज क्रॉप्स विच रिक्वायर्स मोर वाटर. तो इसके कारण जो सॉइल है वो सेलाइन हो रहा है. दैट मीन्स सॉल्टी इन नेचर हो रहा है. आप एक्सेसिव पानी भी डालोगे तो इट विल हार्म द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. Then the seventh point says, at the same time, it has transformed the social landscape, that is, increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. That means डैम मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट में बताया था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो अपना लैंड सैक्रिफाइस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा. किनको फ़ायदा हो रहा है? जो रिच लैंड ओनर्स हैं या रिच फार्मर्स हैं उनको ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द पुअर वंस. तो इसके कारण द गैप बिटवीन द रिच इज़ एंड द पुअर इज़ बिकमिंग मोर वाइडन, इज़ गेटिंग इंक्रीज. इनका गैप जो रिच और पुअर का है वो ज़्यादा बढ़ रहा है. देन वी हैव सेवेंथ पॉइंट विच सेज interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefits of the multipurpose project. अगर कोई states same dam use कर रहे हैं तो they are ready to take all the benefits of that dam, बट कॉस्ट उन डैम्स की बेयर करने को दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दे आर नॉट मतलब एक्सेप्टिंग द शेयरिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज डैम्स. तो इनके कारण इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं. इसी के अलावा आपके राइट हैंड साइड पे इसी पेज पे नर्मदा बचाओ आंदोलन थोड़ा ब्रीफ में उन्होंने थोड़ा सा उसका नोट लिखा है उसके ऊपर. नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एनजीओ ने ये मूवमेंट स्टार्ट की है एंड इसका मेन मोटिव क्या है? टू मोबिलाइज मतलब टू इंकरेज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात. बेसिकली ये एनजीओ है जो चाहती है जो नियर बाय एरियाज़ के ट्राइबल लोग हैं, फार्मर्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, वो जो सरदार सरोवर डैम है उसके अगेंस्ट बोलें जो कि नर्मदा रिवर के पास बनाया गया है. इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल इशू. इनका मेन फोकस क्या है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम उनके ऊपर ध्यान दिया जाए. और वो इश्यूज़ क्या हैं? These issues are related to trees that would be submerged under the dam water. That means जो forest थे वो submerge हो रहे हैं, the trees वो submerge हो रहे हैं because of the dam. Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the OSTs, that is displaced people, मतलब जिनको ये जगह छोड़कर जाना पड़ा था because of the construction of the dam, to get full rehabilitation facilities from the government. इसका मतलब है अभी इस एनजीओ का मेन मोटिव क्या है कि जो लोग शिफ्ट हुए थे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंड, जिन्होंने अपना लैंड सैक्रिफाइस किया था, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे ताकि वो अपना हैबिटेट दोबारा से बना सकें. दिस वाज अ शॉर्ट नोट ऑन नर्मदा बचाओ आंदोलन. नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस, we'll be studying the 8th point in the next slide. The 8th point of disadvantages of multipurpose project is most of the objections to the project arose due to the failure to achieve the purpose for which they were built. Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. That means जो मेन पर्पस के लिए डैम्स बनाए गए थे वो मेन पर्पस द डैम्स हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल.
डैम्स बनाए गए थे ताकि फ्लड्स को कंट्रोल कर सके जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और जब ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है रिवर्स में, तो तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए डैम्स को बनाया गया था। बट ड्यू टू सेडिमेंटेशन, जो रॉक पार्टिकल्स हैं जो लोअर सरफेस ऑफ द डैम में जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे पानी का लेवल क्या हो जाता है, जब नीचे रॉक्स होंगी तो ऊपर पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि डैम्स के कारण ही फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो दे आर नॉट इन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। द लास्ट पॉइंट ऑफ disadvantages is it was also observed that the multipurpose projects incurred earthquakes, caused waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water। जब पानी कहीं पे स्टिल होगा तो उससे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, उससे एयरबॉर्न वाटरबॉर्न डिजीज़ेस हो सकते हैं, पेस्ट हो सकता है। देन द वाटर इन दीज डैम्स इज़ नॉट प्योर, पल्यूटेड वाटर है इन डैम्स का। तो इससे और भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपर्पज़ projects। I hope today's topics are clear to you. Thank you.